Hello, good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. So, dear students, once again, welcome to our English Fred. And today we are going to see another topic of grammar, that is article. In previous video, we have talked about articles a and an and the use of a and an. Dear students, today we are going to talk about the article, the definite article the. Okay, so there is another type of article, that is definite article, and that is the is called definite article. So let's start. The is called definite article because it points out some particular person or thing. Definite or particular person or thing, and that's why this is called definite article. Okay, so let's see how to use, where to use article the and where not to use this article. So let's do it. So our first rule is that, let's see, use of definite article the. So we use the when it is clear which thing or person we mean. Okay, हम द का प्रयोग तब यूज करते हैं, तब प्रयोग करते हैं जब कोई व्यक्ति या किसी चीज के बारे में, हम कौन सी चीज के बारे में या कौन से व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें ऑलरेडी क्लियर होता है, पता होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के बारे में कह रहा हूँ द फ्लोर ऑफ द रूम, द सीलिंग ऑफ द रूम, the door of the room, or the light of the room. So here floor, ceiling, door and light. Okay, if I am going to talk, so it means that the listener knew about the door, the floor. I am talking about जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसको ऑलरेडी पहले से ही जानकारी है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. Okay, then another examples, the roof, the garden, the kitchen, the bathroom of a house. Okay, the supermarket, the station, the airport, the mayor. Okay, of a town. तो जब हम इनकी बात करते हैं सुपरमार्केट की, let's go to the supermarket. Okay, तो ऑब्वियसली जिससे आप बात करोगे उसे पता होगा कि आप कौन से सुपरमार्केट की बात कर रहे हो. लेट्स गो टू द स्टेशन मीन्स योर टाउन मस्ट हैव और योर सिटी हैज़ दी ओनली वन स्टेशन. ओके, लेट्स गो टू द एयरपोर्ट. ओके, जब हम कोई कहेंगे किसी को कि लेट्स गो टू द एयरपोर्ट, ओके, इट मीन्स दैट you knew and the listener also knew about which airport you are talking. Okay, the mayor of a town means हम जिस टाउन में रहते हैं उस टाउन के मेयर की बात कर रहे हैं. ओके, सो इन दिस वे जब हमें किसके बारे में बात कर रहे होते हैं उस नाउन के बारे में पहले से ही पता होता है, तब उसके पहले, उस नाउन के पहले हम ऑलरेडी द लगाते हैं. ओके, सम एग्जाम्पल्स, मॉम इज इन द किचन. ओके, जब इन द किचन बोलते हैं तो ऑब्वियसली मम इज इन द किचन, तो कौन सा किचन? ऑब्वियसली द किचन इन द हाउस. ओके, सो दैट इज, हमें पहले से ही समझ में आ जाता है कि हम कौन सी चीज की बात कर रहे हैं. नंबर सेकंड, टर्न ऑफ द लाइट एंड क्लोज द डोर. ओके, व्हेन वी से turn off the light and close the door, so obviously dear students we are going to talk about our room and door of our house. Okay, or the room, the light and the door of the room. Do you live far from the station? क्या आप स्टेशन से दूर रहते हो? तो ऑब्वियसली मैं कौन से स्टेशन की बात कर रहा हूँ? द रेलवे स्टेशन ऑफ योर टाउन. आई वुड लाइक टू स्पीक टू द मैनेजर प्लीज. ओके, तो मैनेजर जिस प्लेस में भी, बैंक में या किसी जगह पर आप गए होंगे, उस मैनेजर की हम बात कर रहे हैं. ओके, तो इन दिस वे द इज यूज्ड व्हेन द पर्सन और थिंग इज वेरी क्लियर टू अस. Another rule is that we use the in the following cases also. Okay, the का इस प्रकार से भी प्रयोग किया जाता है to speak of a particular person or thing. किसी खास पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में हमें बात करनी होती है, तब भी हम द का प्रयोग करते हैं. Let us go to the lotus garden. Okay, let us go to the lotus garden. Okay, तो lotus garden is a particular place. This is the book he wants. This is the book. Okay, जनरली अ बुक होता है, बट द बुक मतलब
जिस बुक की मैं बात कर रहा था या जिस बुक की हमने बात की थी, ये वही बुक है, ये बताना है, पर्टिकुलर खास बुक की। शी इज द गर्ल हु ओन द प्राइज। ओके, कोई भी जनरल लड़की नहीं है। द गर्ल मीन्स जिसने मेडल जीता है, जिसने प्राइज जीता है, दैट इज द पर्टिकुलर गर्ल, द गर्ल हु ओन द प्राइज। ओके, सो दिस इज अगेन, we don't use the when we are talking about something in general. Okay, हम the का प्रयोग तब नहीं करते जब हम किसी जनरल सेंस से, सामान्यतः किसी चीज के बारे में बात करते। बटर इज नॉट गुड फॉर यू, एक जनरल आइडिया, जनरल कंसेप्ट है। ओके, बटर इज नॉट गुड फॉर यू। ओके, इट्स अबाउट एनी बटर। ओके, नाउ बट अगर हमें किसी बटर के बारे में बात करनी है, किसी दुकान के, किसी के पास के स्पेशल बटर की, द बटर इज इन द फ्रीज, द बटर, तो मैं पर्टिकुलर बटर की बात कर रहा हूँ यहाँ। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर वी यूज द। ओके, इन जनरल वी डू नॉट यूज द। नंबर सेकंड, विथ वी यूज आर्टिकल द। ओके, विथ अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास एज। ओके, तो जब कोई सिंगुलर नाउन जो कि पूरी क्लास को, उस चीज की पूरी तरीके के लोगों को, उसी टाइप के लोगों को, उसी की चीजों को दर्शाता है, तब हम द का प्रयोग करते हैं। ओके, द रोज स्मेल स्वीट। हियर द रोज स्मेल स्वीट का मतलब होता है सभी रोज। ओके, जो भी रोज होते हैं, सभी, all. Okay, here only talk about the only one rose, not roses, but when it is singular noun and it is representing the whole class of rose, पूरे roses की बात चल रही है। The rose smells sweet. The cow is a useful animal. We are not talking about here about only one cow, but all the class of cows. जितनी भी दुनिया में काऊ है, फिर वो इंडिया में हो या विदेश की हो। Okay, the cow is a useful animal. Okay, this represents a whole class. The cat and the lion are of the same family. Okay, the cat and the lion are of the same family. Here again we talk about the nouns representing the whole class, singular noun representing the whole class, then we have to use the. But when we use man or woman, जब हम मैन एंड वुमेन की बात करते हैं, तब फॉर द होल क्लास वी नेवर यूज ए एन और द विथ इट। लेकिन जब हम मैन या वुमेन के साथ में इस प्रकार का यूज करना चाहते हैं, तब हम कभी भी ए एन और द का प्रयोग नहीं करते। ओके, अ मैन नहीं कहते या द मैन नहीं कहते, जनरल में बात करनी होती है हमें तो। मैन इज मॉडर। ओके, वुमेन इज मैंस मैड। ओके, हम कभी अ वुमेन्स, द वुमेन्स नहीं कहते। ओके, सो दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसी को कहा जाता है, इसी पॉइंट को, दैट नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। ओके, जब बहुत बड़े मात्रा में, पैमाने पे किसी अर्थ से इसे कहा जाता है, तब हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। मैन इज मॉर्टल, वुमेन इज मैंस मेड, मैन इज अ सोशल एनिमल, वुमेन इज मैंस मेड। ओके, सो इट इज ऑलरेडी रिपीटेड। नाउ द आर्टिकल कहाँ पर यूज होते हैं डियर स्टूडेंट्स? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अदर क्लासेस एज वेल विथ सुपरलेटिव्स। ओके, ओके, जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव होता है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, उसके हमेशा पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो बेस्ट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द गुड, सो उसके पहले द आया है। ओके, सानिया इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, तो अगेन यहाँ पर बेस्ट आया है। ओके, सो वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल बिफोर दिस सुपरलेटिव फॉर्म। अगेन मैं कह सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, करेज इज द बेस्ट वेपन ऑफ मैन। ओके, तो फिर से द माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट। ओके, द माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो हाइएस्ट के पहले द आया है। ओके, अगेन नंबर 4, बिफोर एन एडजेक्टिव वी यूज द बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। ओके,
जब कोई नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमें पहले से ही हम अंडरस्टूड कर लेते हैं कि इसी के बारे में बात हो रही है, तब भी एट दैट टाइम ऑल्सो वी यूज द आर्टिकल. ओके, सो द रिच शुड हेल्प द पुअर. द रिच, हियर डियर फ्रेंड्स, द रिच मीन्स अमीर लोग. ओके, एंड द पुअर मीन्स गरीब लोग. ओके, so when the is introduced with them, then the meaning of the word is changed. Okay, the rich should help the poor. The rich का मतलब यहाँ पे हो जाता है अमीर लोग, and the poor का मतलब हो जाता है गरीब लोग. Okay, with the names of sacred books, as we use article the with the names of the sacred books. Okay, जो दुनिया की sacred books, पवित्र ग्रंथ, होली बुक्स है. ओके, होली बुक्स, होली मीन्स पवित्र ग्रंथ, पुराण. ओके, या बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं जिनको पूरी दुनिया में मान्यताएं हैं. ऐसे किताबों के नामों के साथ में भी हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दे आर वेरी पर्टिकुलर, स्पेशल. द वेदास, द पुराणास, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Okay, so these are the names of some books. Okay, we always use the before all these names of sacred books. So बड़ी बड़ी ग्रंथ, पुराणों या बड़ी बड़ी किताबों के नामों के आगे में पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं. You have to remember this. Then also we use article the with the names of natural objects that are unique. Okay, जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है जो अपने आप में एक विशेष है, खास है, उन सभी आर्टिकल्स, उन सभी ऑब्जेक्ट्स के पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं. ओके, द सोलर सिस्टम, द सन, द मार्स, द जुपिटर, द यूरेनस, द नेपच्यून, द अर्थ. ओके, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इन सभी के साथ में हम द आर्टिकल लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन, द स्काई, द ओशन, द सी, the earth. Okay, तो these are the natural objects and these are the unique in itself. Okay, ये अपने आप में विशेष महत्व रखती है, इनके जैसा दुनिया में कोई नहीं, and that's why we use article the. Also we use article the with the names of rivers, seas, oceans, gulfs, groups of islands and mountain ranges. Okay, डियर स्टूडेंट्स, हम आर्टिकल द का प्रयोग नदियों के, हर एक नदियों के नाम के पहले करते हैं, सागर के नाम के पहले करते हैं, महासागर के नाम के पहले करते हैं, गल्फ जो खाड़ी देश होते हैं, गल्फ कंट्रीज, उन गल्फ के नामों के पहले करते हैं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स. ओके, जो आइलैंड्स होते हैं, ग्रुप, आइलैंड्स के ग्रुप, उनके ग्रुप के नाम के आगे में हम द का प्रयोग करते हैं. एंड माउंटेन रेंजेस जो होते हैं उनके नामों के आगे में हम द का प्रयोग करते हैं. सो इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिवर्स, the Gange, the Ganga, the Narmada, the Vainganga, okay, the Brahmaputra, the Amazon, okay, the Nile, okay, the Yamuna. Seas की बात करें, the Arabian Sea, the Indian Ocean, okay, the Bay of Bengal, the Pacific Ocean, the Atlantic, the Arctic, okay. गल्फ की बात करेंगे, the Persian Gulf, okay, also it is the Bay of Bengal भी इसमें आता है. Okay, group of islands, the Andamans, the Lakshadweep, okay, the West Indies, the Himalayas, mountain ranges, the Himalayas, the Alps, the Rockies. These are the names of the mountain ranges. Okay, dear students, so here in this way we use the article the. Okay, now little bit हम देख लेते हैं कि हम आर्टिकल का कहाँ प्रयोग नहीं करते. सो द ओमिशन ऑफ आर्टिकल मीन्स आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. कहाँ नहीं करते? तो आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन. जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. इसके पहले भी हमने देखा है, जो मेटल्स वगैरह होते हैं. ओके, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, रबर ग्रोज इन मलेशिया लाइक दैट, आसाम इज फेमस फॉर टी. ओके, तो हम यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए. ऑल्सो आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन. ओके, किसी भी व्यक्ति के या किसी जगह के पर्टिकुलर खास नामों के पहले प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनके
पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ओके, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, आई मेट कृष्णा यस्टरडे। ओके, तो किसी के नाम के आगे भी हम द का प्रयोग या ए एन का प्रयोग नहीं करते। ऑल्सो आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेजेस के नाम के आगे में आर्टिकल नहीं लगाते। ओके, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, मराठी है, तो अगर हम द बोलते, द लगा देते या कोई आर्टिकल लगा देते, जनरली हम द का प्रयोग करते। द इंग्लिश बोलेंगे, इसका मतलब द इंग्लिश पीपल हो जाएगा। ओके, द डच है, ओके, तो मीन्स डच बोलने वाले लोग हो जाएंगे। ओके, देन गेम्स के नाम के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन ऑल्सो article is not used before the names of school, college, temple, church, prison, mosque, court, hospitals. okay, तो इनके नामों के आगे में भी हम आर्टिकल का जनरली प्रयोग नहीं करते। आई गो टू द स्कूल कभी नहीं बोलते, आई गो टू स्कूल बोलते। हाँ, लेकिन अगर हमें पापा के बारे में बोलना है कि पापा स्कूल जाते हैं, तो ओके, तो पापा स्कूल किस लिए जाते हैं? पढ़ने नहीं जाते, तो फीस देने जाते हैं। सो मैं कहूँगा आई गो टू स्कूल बिकॉज माई प्राइमरी एम इज़, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। बट माई फादर गोज टू दिस स्कूल टू पे द फीस। ओके, इस प्रकार से। सो दीज आर सम वर्ड्स वेयर आर्टिकल ऑल्सो इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सम रिलेशंस लाइक फादर, मदर, अंकल, आंट। ओके, एंड सम वर्ड्स लाइक कुक एंड नर्स, इनके साथ में भी प्रयोग नहीं करते। सो डियर फ्रेंड्स, इट्स द मैटर ऑफ जस्ट ओनली प्रैक्टिस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ आर्टिकल द। ओके, सो यूज द वर्ड आर्टिकल इन योर डेली यूज, and we will see in the next period some exercise on article, use of article a and the. Till then, see you, good day, take care.